Welcome to the next part of Maths Chapter 3 Trigonometry. Now, this part is about trigonometric functions. We know that trigonometric functions are in the form of sine, cos, tan, cot, sec, and cosec. Okay, and we are going to understand these functions in details, but in this part, we are actually going to focus on the identities, trigonometric identities. Now, you must have studied trigonometric. Of course, you have studied trigonometric identities in class 10th. Okay, everyone has studied trigonometric identities and how to prove them, how to prove questions using trigonometric identities in class 10th. And in class 10th, you know that there are some reciprocal relations which are shown over here. That is, cosec is reciprocal of sine, sine is reciprocal of cosec, sec is reciprocal of cos, tan is reciprocal of cot, tan is also sine by cos, and cot is cos by sine. So these all relations you knew. Also, you knew the square relation, sine square theta plus cos square theta is 1, or sine square theta is 1 minus cos square theta, and cos square theta is 1 minus sine square theta. And we got 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, or tan square theta is sec square theta minus 1, or sec square theta minus tan square theta is 1. And similar identity for cot and cosec square theta. Okay, so we knew this identity, we still know it. And the good news is that in class 11th and class 12th, and till the end, wherever you are going to use trigonometry, these identities will remain alive and useful and valid. Okay, so they are not going to let go of you so easily. So that's a good news. And yeah, one more good news I have, that the questions which we are going to do in this particular part are somewhat based on the questions which you have done in class 10th, some advanced trigonometric identities questions in class 10th, which which you had seen somewhere, maybe in some reference book like RD Sharma or somewhere. Same questions are there in class 11th. Okay, so those of you in my batch, or those of you watching this video, if you have skipped some difficult or tricky questions in class 10th which look like these, so that's a bad news for you, because you have to do it. Now there is no option, you have to do it here in class 11th. There is no escape, because things are going to get more and more deeper in trigonometry than you imagined them to be in class 10th. Yeah, what did you imagine? Of course, you have decided to take science, and you imagined that the things would get easier, or trigonometry is over forever. No, it was not even the beginning. Here, you are actually facing the beginning of trigonometry. So the questions which you are seeing in front of you, they're nothing. They are very simple. Okay, so see, the first question, though, I think we all have done in class 10th. This is a very simple question. If you think that you don't remember how to do the first question, you can pause the video and try it right now. I will show you the solution, or I will share the whole lesson plan with you, in which the solution will be shared with you. Okay, but what I want to try for all of you is only selected questions in this topic, that is trigonometric identities. I'm not going to do all the questions for you. I'm just going to do selected questions which I feel are little bit new, little bit more advanced level, uh, as compared with class 10th. Although this is nothing advanced level. Okay, this is not even boards level. This is just like preliminary warm up to trigonometry. ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से. So you have to prove that sine raised to 8 theta minus cos raised to 8 theta is equal to sine square theta minus cos square theta bracket 1 minus 2 sine square theta cos square theta. ठीक है, चलो LHS से शुरू करते हैं. वी नो द ड्रिल. LHS, ऑफ कोर्स LHS इसलिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो साइन रेज टू 8 थीटा माइनस कॉस रेज टू 8 थीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन 4 theta the whole square, sine raised to 4 theta the whole square. See, because you should know one thing very well, that sine square theta is nothing but sine theta the whole square. ठीक है, अगर मैं लिखता हूं साइन 4 थीटा, तो इसका मतलब है साइन थीटा द होल रेज टू 4.
अच्छा, और उसको भी अगर मैं होल रेज टू 2 कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि साइन 4 थीटा को मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, ऑल दीज सॉरी बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू साइन रेज टू 8 थीटा। तो ये कंफ्यूजन तो अपने माइंड में है ही नहीं। और एक डाउट अभी क्लियर कर देता हूं, तो आगे मैं बार बार इसके बारे में बात नहीं करूंगा। साइन स्क्वेयर थीटा एंड साइन थीटा द होल स्क्वायर, दे बोथ आर सेम, जो मैंने अभी बताया, बट दे आर नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। इसमें सिर्फ थीटा का स्क्वायर हो रहा है, एंगल का। यहाँ पे पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है। साइन थीटा पूरा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका स्क्वायर हो रहा है। फंक्शंस के बारे में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बात प्लीज जरूर ध्यान में रखना। चलो, तो ये कुछ चीजें थी, डाउट थे, जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिए हैं। आपको लिखना है तो वीडियो रिवाइंड करके लिख सकते हो वापस। ठीक है, तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इस पे मैं लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और यहाँ पे मिलेगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ कॉमन तो ले सकते हैं डेफिनेटली यहाँ से। तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि हम लोग cos 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वेयर थीटा द होल स्क्वेयर। ठीक है, cos स्क्वेयर थीटा द होल स्क्वेयर। sin 4 थीटा को एज इट इज छोड़ दिया मैंने, cos स्क्वेयर थीटा को लिख दिया मैंने cos स्क्वेयर थीटा द होल स्क्वेयर। ओके, अब क्या करेंगे आगे, देखो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। सही है ना, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज ए प्लस बी, एंड साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज ए माइनस बी। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज साइन 4 थीटा इज साइन स्क्वेयर थीटा द होल स्क्वेयर। ठीक है, तो पूरा इलेबरेट करने की तो अब जरूरत नहीं है ना इतना, अगर तुम्हें लगती है जरूरत तो सोच लो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब क्या करेंगे, अब देखो साइन 4 थीटा है मेरे पास, प्लस यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होल स्क्वायर लिखता हूँ, और फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा आगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं आगे कितना सिंप्लीफाई होता है और कैसे सिंप्लीफाई होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई थिंक जो RHS है, RHS उसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो है, सिर्फ ये वाला टर्म नहीं है, तो जो ये वाला टर्म नहीं है वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज कर रहा हूँ, देखो ये जो साइन 4 थीटा है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं ना हम लोग, a माइनस बी द होल स्क्वायर। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता तो मुझे साइन 4 थीटा मिलता, लेकिन प्लस में मिलता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, प्लस यहाँ पे मिलता मुझे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, तो ये मिला मुझे यहाँ पे। अब क्या,
अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या लिखूंगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो। सो मुझे मिला है 1 + 1 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, श्योर। ओके, साइन 4 थीटा तो कॉस साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा तो पहले ही था मेरे पास। तो मुझे मैंने ये ब्रैकेट ओपन करने में शायद कहीं गलती की है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ब्रैकेट ओपन करूं तो देखो क्या होगा अभी पता है। ये ब्रैकेट मेरा एक है, यहाँ पे है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी गलती कहाँ पे है। ठीक है, ये यहां से 2 माइनस 2 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाएगा, तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, और अगेन मेरे पास साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आ जाएगा। तो मेरी गलती कहाँ पे पता है, कि मैंने ये साइन 4 थीटा को भी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा तो होल स्क्वायर लिख दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे वहां पे लग रहा था, बट फिर भी मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, अब मेरे पास और जगह बन चुकी है यहाँ पे। सो मैं मेरे पापों का प्रायश्चित यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, तो ये पाप जो मैंने यहाँ पे किया था उसकी गलती मैं भुगत रहा हूँ, दैट इज साइन रेज टू 4 थीटा। इसको मैं साइन रेज टू 4 थीटा छोड़ दूंगा ना यार, क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं ना आगे क्या होता है। तो ये क्या होगा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा। ठीक है, सो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये दूसरा ब्रैकेट। अब ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो यहाँ पे तो आइडेंटिटी से ही ओपन किया, तो अब ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा, अपने पास मिलेगा हमें 2 साइन रेज टू 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन रेज टू 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन रेज टू 4, अच्छा ये प्लस था ना, तो 2 साइन रेज टू 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये पहला ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या। देखो हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए बहुत नजदीक है। हमको चाहिए साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। चलो देखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा -1, अच्छा प्लस ये 1 की जगह पे क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो चाहिए, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे। ठीक है, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा लंबा खींच रहा है आई नो, बट यही है कि ये जो चीज़ है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है जब तक तुम इसको ठीक से सीखोगे नहीं। तो सीखने के लिए तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग लाइक। एनीवेज, तो अब देखो मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, याद ये आ रहा है मुझे कि ओ हो, देखो मैंने एक गलती कर दी और मुझे मेरा गलती मिल गया, पापों का प्रायश्चित हो रहा है मेरा। देखो यहाँ पे साइंस 1 जो था ना, मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाला, नहीं डालना चाहिए था, मेरा आंसर आ गया ऑलरेडी। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा -1 है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों पता है तुम्हें, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम भूल चुके हो आइडेंटिटीज तो बहुत बड़े गलती में हो तुम। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझा, ये वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे मैं क्या डालूंगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 ब्रैकेट में -2, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसका माइनस साइन मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, +1, ठीक है, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कुछ गलतियां कर दी मैंने और मेरा आंसर नहीं आ रहा था बीच में, और कुछ सिली मिस्टेक्स की थी, तो बस सुधार ली सारी गलतियां और मेरा आंसर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू RHS। अब देखो, ये तो मैं इस चैप्टर में तो मैं इसको समझता भी नहीं हूँ, ये नहीं है, बट ये क्या है पता है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट बिल्डिंग योर स्किल, यू आर बिल्डिंग योर स्किल टू फाइट द चैलेंजेस विच आर कमिंग योर वे। मतलब ये चैलेंज नहीं था, ये सिर्फ वार्म अप था, वार्म अप। तो तुम्हारा वार्म अप करवा रहा हूँ, अब वार्म अप पूरा नहीं हुआ है, वार्म अप आगे बहुत है। तुम सोचोगे क्या है यार सर, बच्चों की जान लोगे क्या, ये वार्म अप में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया साइन और कॉस का। हाँ, ऐसी बात है, अब क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन था, ये लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है, आराम से एकदम 4-5 स्टेप में खत्म कर डाला है। तो तुम ऐसे ही देखोगे, तुम्हारी बुक में भी तुम देखोगे कि वो लोग जिस तरीके से सॉल्व करे, लाइक क्या मैथमेटिकल विजार्ड है क्या, ये 5-6 लाइनों में पूरा खत्म कर दिया। वैसा ही है, वैसा ही है। बट तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हें अगर 5-6 लाइन से ज्यादा लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इलेबरेट करके समझ के सॉल्व करो, ये बात है। अपने को शॉर्टकट मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम ये ओरली करके दिखाओ, मेंटली नहीं, नहीं होगा। पहले सीखो, लिख लिख के सीखो, फिर मेंटली धीरे धीरे देख लेना क्या होता है। ओके, तो अब तुम देखोगे कि सर ये क्या है, ये क्या अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे साइड में जो तुम्हें दिख रही है चीजें, ये वाला, ये तुम्हें चीजें परेशान करेगी। ये क्या है यार, व्हाट इज दिस? सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है, तुम्हारा डोमेन, तो ये तुम्हारी डोमेन है। तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ डोमेन के लिए तुम्हें अलग अलग आंसर आएगा। जैसे अगर तुमने डोमेन मतलब थीटा लिया -π/2 से π/2, तो तुम्हारा आंसर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आज तक मतलब 10th स्टैंडर्ड तक तुम्हें आता आता रहा है। ये सेम क्वेश्चन तुम्हें क्लास 10th में था। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करवा रहा हूँ कि इसको तुम कैसे सॉल्व करते थे। मैं तुम्हें एक याद दिला देता हूँ कि इसको तुम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे पता है, √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। एक मिनट, पहले तो इसको ऐसे लिखते नहीं थे तुम, पहले इसको लिखते थे तुम ऐसे, इसका अंडर रूट अलग और इसका अंडर रूट अलग, और फिर क्या करते थे, रैशनलाइज। सो √1 -sin थीटा, सॉरी 1 - sin थीटा अपॉन √1 - sin थीटा, ऐसे लिखते थे। तो इसको रैशनलाइज करके फिर सिंप्लीफाई करते थे, तो तुम्हें ये आंसर मिल जाता था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्लियरली माना जाता था कि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन थीटा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू, जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। -π/2 के लिए मतलब साइन ऑफ -π/2 -1 होता है, मतलब साइन -90 -1 होता है, और साइन 90 साइन π/2 1 होता है। और हमेशा साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये हमने जब ग्राफ मैंने बताए थे तुम्हें फंक्शंस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स जो मैंने बताए थे उसमें मैंने बताया था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये अप्लाई करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है थीटा की, साइन थीटा की, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे कि उसके नीचे और एक ब्रांच दी है तुम्हें, क्या है, π/2 to 3π/2। π/2 क्या है, 90,
तो 3 पाई बाई 2 क्या है? 3 पाई बाई 2 है 270। 3 पाई बाई 2 क्या है? 270। तो 90 से 270 के बीच में जो वैल्यूज होती है सेक थीटा और टैन थीटा की, वो ऑपोजिट हो जाती है। मतलब सेक थीटा माइनस सेक थीटा बन जाता है और माइनस टैन थीटा प्लस टैन थीटा बन जाता है। कहां से कहां के बीच में? 90 से 270 के बीच में। और ये तुम्हें प्रूव करना है यूजिंग दिस क्वेश्चन। तो मैं इसका प्रूफ दिखा के मैं तुम्हें डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रूविंग में कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हें रैशनलाइजेशन से बताया वही है। लेकिन लेकिन एक चीज प्रूविंग में बहुत ही मजेदार है, दैट इज दिस थिंग। जो तुम्हें डिनोमिनेटर मिलता है वो है अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट मॉड ऑफ कॉस थीटा। ऑलवेज रिमेंबर हमारा मॉड्यूलस फंक्शन था, मॉड्यूलस फंक्शन में इफ यू हैव गॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट वाज रिटन एज प्लस माइनस एक्स, एंड प्लस माइनस एक्स इज ऑल्सो मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स को भी प्लस माइनस एक्स लिखते हैं। मॉड ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू या तो प्लस है या तो माइनस है, मॉड में डालने से प्लस हो जाती है, राइट? मॉड ऑफ एक्स इज ऑल्सो प्लस माइनस एक्स। तो इसके लिए जो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिया, ठीक है, एक्स की जगह हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसका आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है, देखो प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है और माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है। लेकिन प्लस कॉस थीटा कब होगा? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू प्लस होती है। ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें यूनिट सर्कल बना के, और प्रॉपर ये सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। सिर्फ ये एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आया है, बट अपने नेक्स्ट वीडियो में जब मैं यूनिट सर्कल एक्सप्लेन करूंगा तुमको, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दिस। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है कि कॉस -90 और +90 के बीच में पॉजिटिव कैसे रह सकता है, पूरी चीजें हम समझेंगे, ठीक है? बट ये क्वेश्चन में ये जो तुम्हें अजीबो गरीब डोमेन की वैल्यूज दी थी, उसका मैं एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन में, ठीक है? तो कॉस, मॉड ऑफ कॉस थीटा की और एक वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा माइनस कब होता है? 90 से 270 के बीच में, ठीक है? अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यू विल गेट सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ऊपर वाले को सॉल्व करके, और नीचे वाले को सॉल्व करके यू विल गेट माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और तुम्हारी जो डोमेन है वो यही रहेगी जो तुम्हें ऊपर मिली थी। हो गया प्रूफ। मतलब तुम्हें जो 10th क्लास में जो प्रूव करनी होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वही चीजें प्रूव करनी है। लेकिन अब थोड़ा डोमेन का ख्याल रखना है। क्यों डोमेन का ख्याल रखना है? बिकॉज यू आर इन क्लास 11th एंड यू जस्ट लर्न रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अब डोमेन का यहाँ पे इंक्लूजन होगा। बट हमें समझना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स को समझना है कि कौन सी डोमेन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी वैल्यू प्लस या माइनस और कौन सी वैल्यू अटेन या अचीव करता है। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, और ये हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में अपना कंसर्न क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बताओ ये वाला कैसे सॉल्व करोगे तुम? ये वाला सॉल्व करने के लिए अगर तुम क्लास 10th में होते और ये तुम्हें प्रूव दैट क्वेश्चन आ जाता, है ना, क्लास 10th का क्वेश्चन है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम तो जानते हो, तुम इसको कर लोगे, क्रैक कर लोगे इसको, वीडियो पॉज करो, करो क्रैक। लेकिन अगर तुम नहीं जानते, भूल चुके हो, तो मेरी कुछ एडवाइजेस है वो ले। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे पता है? एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एक तरीका नहीं, इसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, बट मैं एक ऑप्शन की बात कर रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है कि कॉसेक जो है तुम्हारा एलएचएस में, उसको साइन के टर्म्स में लेके आओ, क्योंकि कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। तो जहां जहां कॉसेक है उसको 1/sin थीटा के फॉर्म में लेके आओ और आगे सिंप्लीफाई करो। करते 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 तुम्हें जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो करने से ही समझेगा, क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है, इसलिए मैं करके नहीं दिखाऊं। दूसरा ऑप्शन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम ये दोनों फ्रैक्शंस जो है ना, cosec थीटा अपॉन cosec थीटा -1 एंड cosec थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा +1, ये दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आगे इसको सिंप्लीफाई करो, और करते 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 तुम्हें जो आरएचएस है वो मिलना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन है। प्लीज वीडियो पॉज करो और अभी ये सॉल्व करो। ओके,
सो आई थिंक तुम लोगों ने तो ट्राई कर लिया है, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखो ये लोग ने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया आगे, और सॉल्व करते करते वो लोगों को आंसर आ गया। तो ये वही, ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन आई सेड के ये वार्म अप है तुम्हारा। अगेन ये वाला क्वेश्चन हमने कितनी बार किया है क्लास 10th में। इसमें हम लोग 1 को रिप्लेस करते थे, याद है? न्यूमरेटर में 1 को रिप्लेस करते थे, और सेक और टेन का जो टैन का जो रिलेशन है उसके फॉर्म में लिखते थे हम लोग 1 को, और फिर आगे कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करते थे एलएचएस को, फिर हमें मिलता था ये 4 स्टेप में हो जाता था ये। ठीक है, तो ये भी उस टाइप का है, नहीं करोगे तो चलेगा, डोंट डू दैट। ये लोग ने इफ लेके किया है, इफ लेके करना मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि दोनों को इक्वेट करके इफ लेके करो। आई डोंट रिकमेंड दिस स्टेप, जो हमने पहले किया था 10th में वो वाला सही था। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग। आई थिंक मैं ये ट्राई करूंगा तुम लोग के लिए। लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, अच्छा इसमें है क्या, तुम्हें दिया है, तुम्हें गिवन है, ये जो इंफॉर्मेशन है गिवन है, क्या है? cos 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ये गिवन है तुमको। ठीक है, तुम्हें प्रूव करना है ये दो चीजें, ये दो चीजें प्रूव करनी है। अब सुनो, ये जो प्रूव करना है तुम्हें, उस पर डायरेक्टली मत उतरो। पहले जो गिवन है ना उसको सिंप्लीफाई करो, गिवन को सिंप्लीफाई करो, और फिर जो प्रूव करना है उसके बारे में सोचो। ठीक है, गिवन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे हिसाब से तो कुछ भी करने से पहले एलसीएम लेके इसको डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन फॉर्म है उससे हटाना चाहिए। तो एलसीएम ले लेते हैं इसको। तो एलसीएम इधर आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा एलसीएम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब पूरे फ्रैक्शन के साथ। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4 अल्फा प्लस cos square beta multiplied by sin 4 alpha the whole upon sin square beta multiplied by cos square beta is equal to 1। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 1। अब ये जो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको वो राइट साइड में लेके जाते हैं, देखते हैं किससे कितना सिंप्लीफाई होता है। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 4 alpha। Now if you permit me, I would want to convert uh, this cos into sin so that I can take out something common, है ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये वाला cos 4 अल्फा जो है उसको साइन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सो आई विल राइट इट एज, सॉरी पहले तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर, cos square alpha, cos square alpha the whole square प्लस, देखो यहाँ पे cos square बीटा, ये cos square बीटा को मैं साइन के टर्म्स में लाना चाहता हूँ, तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये साइन 4 बीटा को एज इट इज छोड़ दो, साइन 4 बीटा, साइन 4 अल्फा, आई एम सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, सो जस्ट बिहोल्ड साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है उसकी जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आखिर में ये सब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा बिकॉज उसके बिना तो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? उसके बिना कॉमन निकलना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है।
ठीक है, सो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर देते हैं। तो इट विल बिकम साइन रेस टू 4 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 4 अल्फा, ये कर दिया, और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है ओके, नीचे इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन रेस टू 4 अल्फा, साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस साइन रेस टू 4 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा multiplied by sine 4 alpha is equal to sin square beta multiplied by cos square beta। अब दिमाग का पारा तुम्हारा इधर उधर हो रहा होगा, तुम सोच रहे होगे क्या है ये, कहाँ पे आ गए हम लोग। कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 है साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस प्लस साइन रेस टू 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन रेस टू 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन रेस टू 4 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन रेस टू 4 अल्फा। मेरे हैंडराइटिंग भी बहुत ही बदसूरत हैंडराइटिंग निकल रहा है, बट कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। अरे किसी ना किसी को तो ये गंदा काम करना पड़ेगा ना, गंदगी में उतरना पड़ेगा गंदा काम करने के लिए नहीं तो ये सॉल्व कैसे होगा। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज दिख रहा है मुझे, ये जो साइन रेस टू 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा है वो 2 बार दिख रहा है मुझे, साइन रेस टू 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, एक माइनस एक प्लस, तो ये हटाओ ना इसको, ये कट हो गया, तो बचा क्या। अब जो बचा है ना वो बहुत मस्त चीज बचा है। ठीक है, मैं बता दूं तुमको क्या, मैं बताता हूँ तुमको क्या। देखो, हमारे पास है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है क्या, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर बीटा है हमारे पास, और हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और हमारे पास है साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, वो भी ठीक है। यार कुछ तो झोल है यहाँ पे जो हम लोग समझ नहीं पा रहे, बिकॉज दिस शुड बी साइन रेस टू 4 बीटा, तब जाके ये मस्त हो जाता, तब ये इजी हो जाता। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि ये पूरा आइडेंटिटी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मुझे लगता है कि कुछ साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे पूरा साइन के टर्म्स है, कॉस तो है ही नहीं। तो आई थिंक कुछ कॉमन निकल सकता है ना यार, हाँ बट कॉमन निकलेगा अगर सब में से साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा तो सब में कॉमन भी नहीं निकल सकता, साइन स्क्वायर बीटा अगर ये दोनों टर्म में से कॉमन निकला तो हमारे पास क्या बचेगा। ओह जस्ट मिनट मेरे को देखने दो, मेरी कुछ गलती हुई है या नहीं हुई, देखने दो मुझे एक मिनट। ओके, मैंने चेक तो किया सब कुछ वापस, सब कुछ सही लग रहा है मुझे, कुछ गलत नहीं लग रहा है, बट ओनली थिंग इज उनका मेथड तो बिल्कुल अलग है, लंबाई है लेकिन बिल्कुल अलग है। तो ओनली थिंग इज यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर बीटा है ना, इसको मुझे साइन के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सारी टर्म साइन में है और यही सिर्फ अकेला कॉस में है, और उसको फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड में जीरो बनाना पड़ेगा, फिर आगे जाके ये सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो ये मैंने चेक किया है। लेट्स राइट दिस ऑल ऑल ओवर अगेन, साइन स्क्वायर बीटा
sine square beta, let me write it from here. Sine square beta minus 2 sine square alpha sine square beta minus 2 sine square alpha sine square beta plus sine 4 alpha plus sine 4 alpha इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर बीटा, ये तो ठीक है, ब्रैकेट में कॉस स्क्वेयर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा लिख देता है. सी दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ. एक बार चेक कर लेते हैं. सो वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वेयर बीटा माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा, बाकी सब कट हो गया, प्लस साइन स्क्वेयर साइन रेज टू 4 अल्फा. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? सो वी हैव साइन स्क्वेयर बीटा minus 2 sine square alpha sine square beta is plus sine raised to 4 alpha is equal to sine square beta minus sine raised to 4 beta, sine raised to 4 beta. ठीक है, तो साइन रेज टू 4 बीटा तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन 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 इसका काम आ जाएगा. देखो ये साइन रेज टू 4 साइन स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा. अब ये जो माइनस साइन रेज टू 4 बीटा है ना, उसको वो साइड लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन रेज टू 4 बीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन रेज टू 4 अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब ये देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है हमारे पास. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सही है. सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा minus sine square beta is equal to 0, square rooting both the side, and that means sine square alpha is equal to sine square beta. Sine square alpha is equal to sine square beta, and that means sine alpha is equal to sine beta, and if sine alpha is equal to sine beta, that means alpha is equal to beta. Whoa, that was a revelation. Alpha is equal to beta कुछ आया है हमको. अच्छा, अब जहां जहां अल्फा है वहां बीटा लेके अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो मुझे लगता है कि सारे रिजल्ट इजीली प्रूव हो जाएंगे. मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा ही अगर हमने प्रूव कर दिया तो ये कोई भी रिजल्ट यहाँ पे 1 और 2 में से आराम से प्रूव कर सकते हैं. तो जस्ट ये पहले नोट कर लेना जो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और उसके बाद ये एक नोट कर लेना पॉज करके, और ये एक नोट कर लेना पॉज करके. ठीक है, इसके बाद ये दोनों रिजल्ट सॉल्व कर लेना. अल्फा और बीटा इक्वल है तो बीटा की जगह अल्फा डालो या अल्फा की जगह बीटा डालो. सिंप्लीफाई करोगे एलएचएस को तो आरएचएस मिलेगा तुम्हें. ठीक है, उतना कर सकते हो तुम लोग. आई एम श्योर यू कैन डू इट. प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट. ओके, डन. लेट्स चेक. तो देखो ये लोगों ने भी ऐसी लंबी चौड़ी चीजें की है और साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा मिला है उनको. ठीक है, और फिर वो लोग ने सिर्फ इतना ही छोड़ दिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नहीं किया है, बट जैसे मैंने बोला कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा लेके अगर करोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा. अब ये वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है, बट दिस इज काइंड ऑफ और लंबा है ये, और तुम्हें बोला है कि 2 tan स्क्वायर अल्फा. 1 मिनट में थोड़ा इसको छोटा करता हूँ. 2 tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गैमा प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गैमा प्लस tan स्क्वायर गैमा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. ऐसे बोला है. प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. अब ये प्रूव करने के लिए तुम्हें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा है ना, उसको ABC ले लो. ठीक है, तो तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें दिया है 2ABC
सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। 2abc प्लस ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 1, ये बोला है तुमको। और तुम्हें उसके बाद ये जो tan tan स्क्वायर अल्फा है उसका वैल्यू a है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a लिया है मैंने, tan स्क्वायर बीटा को मैंने b लिया है, और tan स्क्वायर गैमा को मैंने c लिया है, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर गैमा को a b c लिया है मैंने, और मुझे ये दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यूज, ये मुझे दी हुई है। अब इसको कैसे मैं सिंप्लीफाई करूँ? तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे मेरे ख्याल से आई शुड बी लीविंग 2abc प्लस ab ओवर हियर एंड 1 माइनस bc माइनस ac ओवर हियर। मे बी इससे कुछ हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ ab, तो मुझे क्या मिलता है? 2c प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं c कॉमन निकालता हूँ माइनस c, तो अंदर क्या बचेगा? b प्लस ए या a प्लस बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से मे बी कोई रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, a या b या c। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी सॉल्व नहीं किया है ये। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके तुम इसकी कोशिश कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा सोच सकते हैं क्या, या फिर 1 को वो साइड लेके फिर पूरा फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इट डिपेंड्स के कैसे होगा ये। आई एम नॉट श्योर के एग्जैक्टली कैसे होने वाला है, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई कि इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लोग को साइन स्क्वायर के टर्म्स में लाना है। तो तुम सोचोगे कि tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो sec स्क्वायर के टर्म्स में इसको लाके फिर इसको सिंप्लीफाई करे आगे, या फिर तो वो काफी लंबा हो जाएगा ये। मुझे लगता है ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करना चाहिए। प्लीज वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो आई विल डिस्क्लोज द सोल्यूशन विथ यू। अगेन टेलिंग यू, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये सिर्फ वार्म अप है। ऐसा कुछ आगे चैप्टर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ फिक्स नहीं है, मोस्टली तो नहीं है ऐसा कुछ। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसे सॉल्व करना, तुम्हारे पास वो स्किल होनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग, ठीक है। प्रॉब्लम है फिर। तो इसलिए मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये स्किल है क्या, तुम इतना दिमाग लगा सकते हो क्या? क्योंकि ये हॉट्स का क्वेश्चन है। हॉट्स मतलब जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। देखें, चलो देखते हैं। नहीं आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं वो लोग ने कैसे किया। वो तो ये लोगों ने थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर गैमा से डिवाइड किया है, और उनको ये वाला इक्वेशन मिला है। और उसके बाद कॉट को कोसेक के टर्म्स में लाया है, सारे ब्रैकेट ओपन किए हैं, और सिंप्लीफाई करते 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 उनको उन्होंने साइन के टर्म्स में कन्वर्ट किया है। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन। You can also try if you have got it with some other method, long method doesn't matter. If you got it, good, very nice. ठीक है, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है। इसकी पूरी एक्सरसाइज में तुम्हें पूरा इसका दूंगा, ये क्या बोलते हैं इसका, लेसन प्लान के साथ। सो डोंट वरी, मुझे देखना है कि कुछ नया तो नहीं है। नहीं, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। सो सी, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एंड देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर यू टू ट्राई, लाइक हाउ आई हैव शोन यू। ओके, तो ये पूरा लेसन प्लान मैं तुम्हें भेज रहा हूँ एक्सरसाइज के साथ। आई विल बी गिविंग इट टू यू। ओके, सो डोंट वरी कि हमने पूरे सारे सॉल्व एग्जाम्पल नहीं किए। मैं तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये पार्ट जस्ट एक वार्म अप पार्ट था। आगे के पार्ट से आई ट्राई टू सॉल्व द होल सॉल्व एग्जाम्पल पार्ट फॉर यू, and also then we can solve the exercise. I don't know what I'm talking about. Okay, so see you in the next video. Bye bye.